Welcome back to the second part of today's webinar. We are glad you are joining us as we have dived into workplace sexual harassment law in India, legal framework, important sections, case laws, procedure, and compliance. Our speaker, Advocate Jayaprakash Somani, will guide us through the intricacies of the crucial topics. Let's continue with the second part of today's webinar. Welcome back to you, sir. Over to you. Thank you. Thank you. Now, just give me a few seconds to open the blog. मैं पहले blog लिखता हूँ और फिर प्रोग्राम लेता हूँ दोस्तों, ये याद रखना. So then, comprehensive information on POSH Act 2013, workplace sexual harassment law in India. ये प्रेजेंटेशन में हम लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, केस लॉज देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एंड कंप्लायंस देखेंगे. First introduction, the protection of women from sexual harassment at workplace is a constitutional and statutory mandate in India to ensure safe and dignified working conditions for women. Parliament enacted the Sexual Harassment of Workplace at Women Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, commonly known as POSH Act. The legislation was enacted pursuant to landmark judgment of the Supreme Court in India. Vishaka versus State of Rajasthan, citation 1997, 6 SCC 241. Already we have seen in detail in last part also, but a person who is watching directly second part, so he should get all the information. तो ये जो विशाखा जो केस है, ये विशाखा केस राजस्थान में हुआ था और ये राजस्थान में एक लेडी के ऊपर गैंगरेप हुआ था जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठा रही थी. फिर वो जिन्होंने चाइल्ड गैंगरेप किया उनको पनिशमेंट हुआ वगैरह, वो सब बातें हैं, लेकिन उसमें से सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. The POSH Act creates a comprehensive legal mechanism for prevention of workplace sexual harassment, prohibition of inappropriate conduct, redressal of complaints, and employers' accountability and compliance. Historical background. Before 2013, India has no specific legislation dealing with workplace sexual harassment. The Supreme Court in Vishaka versus State of Rajasthan laid down famous Vishaka guidelines which operates as a law until the POSH Act came into force. POSH Act आया 2013 में और विशाखा का गाइडलाइंस 1997 में मिला. तो ये गाइडलाइंस के कारण और कानून आने के पहले विशाखा का केस लॉज ही गाइडेंस होता था और वो प्रमाणभूत मान के जुडिशरी चल रही थी, कंप्लेंट होते थे, सब कुछ होता था और वर्क प्लेस काफी हद तक सेफ हो गया. अभी तो काफी हद तक सेफ है, पहले तो बहुत बेकार था, अभी काफी हद तक सेफ है. इसलिए वर्क प्लेस आपको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को भी वर्क प्लेस माना गया है, हमने देखा है उसका डेफिनेशन. तो जो कैब लेने के लिए आती है कंपनी की इसकी उसकी, वो कैब में भी कुछ कुछ लड़कियों के साथ कितना बुरा हुआ है. अभी वो लड़की बैठती है कैब में, थोड़ा सा अभी उतरना है उसको ऑफिस में के नजदीक, तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती है, आईने में देख के करते वो करते, बस वो लिपस्टिक लगाती है, वो थोड़ा सा मेकअप करती है, तो बस वो भोग की वस्तु है, ऐसा ड्राइवर को लगता है. क्रूएल माइंड है, क्रूएल माइंड है, बहुत गंदे विचार है. और फिर कुछ गड़बड़ करते हैं और फिर जाते हैं जेल में अंदर. So the court held that sexual harassment violates Article 14 equality, Article 15 non-discrimination, Article 19 1G right to profession, and Article 21 right to life and dignity. 3. Structure of POSH Act. 2 columns are there, particulars and details. Total section in POSH Act 30 sections. Total chapters in POSH Act 8 chapters. Schedules, no schedules. And enforcement from 9th December 2013. लगभग 2014 में चालू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है.
4 चैप्टर्स अंडर पॉश एक्ट। यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेल में दे रहा हूँ अभी। सो चैप्टर, कौन से चैप्टर में क्या क्या पॉश एक्ट में, ये लीगल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छा है ये प्रेजेंटेशन। पार्ट 2, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी, chapter 4 complaint, chapter 5 inquiry into complaint, chapter 6 duties of employer, chapter 7 duties and power of district officer, and chapter 8 miscellaneous. Objectives of POS Act. Primary objectives are prevention of sexual harassment, protection of women at workplace, redressal of complaints, creation of safe working environment, and employers accountability. 6 important definitions under POSH Act. A, sexual harassment. Section 2(n) includes physical contact and advances, demand request for sexual favor, sexually colored remarks, showing pornography, unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct. B, aggrieved woman. A woman of any age, whether employed or not, who alleged workplace sexual harassment, that is called aggrieved woman. C, workplace, section 2(o) includes offices, its branches, law firms, lawyer लोगों, लॉ फर्म चलाने वाले लोगों, सुधरो। मुझे बहुत कंप्लेंट आती है अलग अलग लॉ फर्म से। वहां पे जो जूनियर आते हैं, मिलते हैं, वो बोलते हैं बहुत बहुत कैरेक्टर खराब है वो लॉ फर्म वाले का, सुधरो। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर इतना खराब एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे अपने ऑफिस में, वुमन की डिग्निटी नहीं रखेंगे, वुमन की इच्छा व्यतिरिक्त कुछ चीजें करेंगे, तो कैसा चलेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, वर्चुअल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम सेटिंग्स, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं लेकिन ऑफिस का काम कर रहे हैं, और वर्क प्लस होम में ऑफिस का काम करते समय ऑफिस से आपके एम्प्लॉयर या सीनियर मैनेजर कुछ भी गलत करते हैं वर्चुअली, इवन दो इट इज दैट कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयर ने जो प्रोवाइड किया हुआ ट्रांसपोर्ट है, ये भी वर्क प्लेस में आता है। 7 इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर पॉश एक्ट, ये प्रॉपर समझ लीजिए, बहुत विस्तार से ले रहा हूं मैं। लॉयर के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए, जजेस के लिए, लीगल ऑफिसर्स जो कंपनी में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेजेंटेशन। पार्ट 2, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमिटी, सेक्शन 9 कंप्लेंट प्रोसीजर, सेक्शन 10 conciliation, section 11 inquiry, section 12 interim relief, section 13 inquiry report, section 14 false complaint, section 16 confidentiality, section 18 appeal, section 19 employer duties, section 26 penalty for non compliance. थोड़ा फास्ट होता है तो माफ करना, आप यूट्यूब पे देखते समय इसको स्लो कर सकते हैं, रिवर्स करके प्ले कर सकते हैं वापस, लेकिन देखते रहो, पढ़ते रहो, लॉ में अपग्रेड होते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया करते रहो, और हमारे वेबिनार अटेंड करते रहो। हफ्ते में 2 तो अब ले रहे हैं, मंगलवार को हो रहा है, शुक्रवार को हो रहा है, हाँ, और भी होंगे बीच में। हमारा पूरा फोकस है नया नया कुछ करने के ऊपर। इंटरनल कमिटी आईसी, सेक्शन 4, every employer having 10 or more employees must constitute an internal committee। यहाँ पे थोड़ा विस्तार से दिया है। अभी इंटरनल कमिटी का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर वुमन एम्प्लॉय, इसका पहला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर वुमन एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉयज,
कमिटेड कमिटेड टू वुमेन्स वेलफेयर लीगल नॉलेज, ऐसे 2 एम्प्लॉय चाहिए। और एक्सटर्नल मेंबर, अभी ये जो 2 एम्प्लॉय है ये लेडी चाहिए ऐसा नहीं है, जेंट्स भी चलेगा इसमें, एक लेडी चलेगा एक जेंट्स चलेगा, दोनों जेंट्स चलेंगे दोनों लेडी चलेंगे। कानून ने ऐसा लेडी जेंट्स यहाँ पे दिया नहीं है। ऊपर दिया है सीनियर वुमन एम्प्लॉय प्रेसिडिंग ऑफिसर, वुमन ही चाहिए, वो भी सीनियर चाहिए ऑफिस की। और सी एक्सटर्नल मेंबर, यानी कि आपके कंपनी के बाहर का एक मेंबर चाहिए, जैसे रोटरी है, एनजीओ है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या लीगल एक्सपर्ट है, किसी लॉयर को भी आप ले सकते हैं कमेटी के ऊपर, कंपनी वाले। एटलीस्ट 50% मेंबर मस्ट बी वुमन। तो जितनी कमेटी में मेंबर है उसमें के 50% से ज्यादा वुमन चाहिए उसमें, 50% तो चाहिए चाहिए। 9 लोकल कमिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज, जहां पे 10 से कम एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, 2 है 3 है, वहां पे लोकल कमिटी चाहिए। और कंप्लेंट इज अगेंस्ट एम्प्लॉयर, कंप्लेंट अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है तो फिर लोकल कमिटी के पास जाएगा वो। द कंप्लेंट गोज बिफोर द लोकल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये कमिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन 10 कंप्लेंट प्रोसीजर अंडर पॉश एक्ट, अब ये थोड़ा विस्तार से जान लो कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है पॉश एक्ट का। स्टेप 1, फिलिंग फाइलिंग कंप्लेंट। तो कंप्लेंट फाइल करते समय रिटन कंप्लेंट फाइल करना है विद इन 3 months फ्रॉम इंसिडेंट, एंड एक्सटेंशन पॉसिबल फॉर सफिशिएंट कॉस्ट। 3 महीने का तो मुदत है, 3 महीने में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 4 महीना भी हुआ, लेकिन डिले होने का कारण आपके पास है प्रॉपर, तो एक्सटेंशन मिल सकता है टाइम का, एक्सटेंशन पॉसिबल फॉर सफिशिएंट कॉस्ट। स्टेप 2, कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन ऑप्शनल है, यानी कि दोनों का कॉन्सिलेशन करो, झगड़ा खत्म करो उसी लेवल पे, लेकिन एक ऑप्शनल है। ओनली एट कंप्लेनेंट्स रिक्वेस्ट, कंप्लेनेंट अगर रिक्वेस्ट करता है कंसिलेशन के लिए होगा। मॉनेटरी सेटलमेंट प्रोहिबिटेड हियर, किसी को भी छेड़ो और बाद में पैसे देके मिटाने की कोशिश करो तो मॉनेटरी सेटलमेंट प्रोहिबिटेड है। बहुत विस्तार से आ रहा है ये सब चीजें। स्टेप 3, इंक्वायरी। इंटरनल कमिटी कंडक्ट्स इंक्वायरी। Internal committee conducts inquiry natural justice, following natural justice, giving hearing to both parties. Step 4, interim relief. IC may recommend transfer. इंटरनल कमिटी, अगर वो एम्प्लॉय गलत है जिसके ऊपर आरोप है तो उसका ट्रांसफर करो, या लीव अप टू 3 months, और रिस्ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट। स्टेप 5, इंक्वायरी रिपोर्ट must be completed probably within 90 days. And step 6, employer action. Employer to act within 60 days. 11, confidentiality under POS section 16. The following cannot be published. Identity of party publish नहीं करना है, विटनेस डिटेल्स पब्लिश नहीं करना है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स पब्लिश नहीं करना है, रिकमेंडेशंस पब्लिश नहीं करना है। वायलेशन में अट्रैक्ट पेनल्टी, अगर इसका वायलेशन होता है तो पेनल्टी पड़ेगा। एम्प्लॉयर ड्यूटीज सेक्शन 19, एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड सेफ वर्कप्लेस, display POSH policy, organize awareness programs, conduct workshops, assist inquiry process, file annual reports. 13, penalties for non-compliance. Section 26 is related to penalty up to 50,000 rupees. Repeated violation may lead to cancellation of license and withdrawal of registration. Section
part 4 of this presentation, important Supreme Court pause judgment on POSH. So already we have discussed this in earlier part. Vishaka versus State of Rajasthan, citation 1997, 6 SCC 241. Ratio, sexual harassment violates fundamental rights. Supreme Court framed Vishaka guidelines and importance, foundation of Indian post jurisprudence. This Vishaka case law is the foundation of India's post jurisprudence. Apparel Export Promotional Council versus A.K. Chopra, citation 1999, 1 SSC 759, ratio physical contact not necessary. Any unwelcome conduct affecting dignity constitutes harassment. Importance, expanded definitions of harassment. मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन 2013, 1 एसएससी। डबल हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है, होने दो, बार बार सुनो, अच्छा रहेगा लीगल प्रैक्टिस के लिए। और जो फर्स्ट टाइम पार्ट 2 ही देख रहे हैं डायरेक्ट, उनके लिए तो रिपीट नहीं हो रहा है, उनके लिए तो फ्रेश आ रहा है। Citation 2013, 1 SCC 297, ratio Vishaka guidelines remain enforceable till proper implementation. Importance, strengthened implementation obligations. Aurelino Fernandez versus State of Goa, citation 2023, SCC online SC 621. Ratio, mandatory implementation of POSH mechanisms. Courts expressed concern regarding non-constitution of ICs. Importance, major compliance focused judgment. Nisha Priya Bhatia versus Union of India, citation 200, 2020, 13 SCC 56. Ratio, hostile workplace environment violates constitutional guarantee. Hostile workplace environment violates constitutional guarantee. बस दोस्तों, ऐसे हम हमारे नानी पालकी वाला नेशनल क्लब का लॉ क्लब का पूरा भारत भर में जो स्प्रेड नेटवर्क है ना, इसमें से हम अलग अलग गांव में ऐसी कमेटी तैयार करेंगे ना, बस कहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है ना, वो कमेटी के लोगों ने जानेगा और वो उसको काला लगा के आने का उसके चेहरे के ऊपर, वो एम्प्लॉयर के या वो एम्प्लॉय के जिसने गलत किया है। बस वो कमेटी बिमिटी तो होता रहेगा, लेकिन जबरदस्त होना है, धाक चाहिए लोगों को, हमको सुधार लाना है। ये तो मैं पॉश एक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की जो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं, तो ये गरीबों तक पहुंचने का जिम्मा भी हमारा ही है। हमने डिग्री क्या खाली पैसे कमाने के लिए नहीं लिया है दोस्तों। हमने जो लॉ का डिग्री लिया है ना, बहुत कम लोगों को नसीब होता है ये लॉ का डिग्री, और बहुत कम लोगों को नसीब होता है वो कंपैशन अबाउट द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसके प्रति कंपैशन। बहुत काम करना है दोस्तों, आपका साथ है ना, हम करेंगे। आप करो प्रोग्राम, आपको करो शाखा एस्टेब्लिश करो नानी पालकी वाला की, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको ब्रांच। करो प्रोग्राम, वेबिनार अरेंज करो, कांटेक्ट करो, श्रुति को करो, मनोज को करो, बहुत काम करेंगे। अभी मैं हम देखते हैं बिहार में, इधर उत्तर प्रदेश में, कुछ कुछ एरिया में, ग्रामीण एरिया में, स्पेसिफिक शहरी एरिया में बच्चियों को स्वातंत्र ही नहीं, कुछ नहीं। बच्ची की 10वीं हो गई कि भाई उसकी शादी करो। अभी तो कम से कम 10वीं तो होने दे रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं होने देते थे। 10वीं 12वीं की शादी करो, बस शादी करके फिर इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के बाद उनकी शादी की जाती है और वो खाली बच्चे संभालना, रसोई करना, इसमें में ही भी हो जाते हैं। दिखने में सुंदर है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन बाप को लगता है कि बेटी बोझ ही है, हाथ पीले कर दो, हम फ्री हो गए हैं। हाँ, अभी संन्यास लेने के लिए फ्री हो गए हैं।
अरे, आपके संन्यास के लिए या आपके बोझ हल्का करने के चक्कर में एक अच्छी जिंदगी आप खराब कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां बहुत स्ट्रांग है। मेरे ऑफिस में मेरी एसीओ है, पूजा, ये हमारी एसोसिएट श्रुति है, ये बहुत स्ट्रांग लेडी है। बाकी भी है, एकता है वर्मा, शिजबा है, गुरप्रीत है, मंजू जेटली जी है हमारी, मेरे से बड़ी भी हो। और भी लेडीज हैं। वेटिंग लिस्ट के लिए हमारे पास एओआर की वेटिंग लिस्ट है, एसोसिएट होने की वेटिंग लिस्ट अलग है, जूनियर्स हैं। इसमें के कुछ लड़कियां बहुत स्ट्रांग है। अभी पूजा, उसको एजुकेशन के लिए इसके लिए के अनुकूल वातावरण नहीं था, वो अकेले आई दिल्ली में, जीत करके आई। सबने विरोध किया घर वालों ने, लेकिन वो जीत के आई कि लॉ भी कंप्लीट किया, सब किया, मास्टर्स किया इसमें इंग्लिश में, डिजिटल मार्केटिंग किया। मेरे पास 3 साल काम किया उसने पीए बोल के। हम दोनों एक ही ऑफिस में अकेले रहते थे, लेकिन कभी कोई गड़बड़ नहीं। कभी उसकी आंखों में मुझे कोई चीज नहीं दिखी, कभी मेरे आंखों में उस चीज दिखी नहीं दिखी, वो तो वही बताएगी। लेकिन इसकी डिटरमेंट है, आज लॉ कंप्लीट कर रही हो, लॉ बन के आएगी आगे, लॉयर आगे काम करेगी। आज आज अभी उसके घर के पापा उसको बोलते हैं ऑनर है, जब तू वो वकील बनेगी, हम तेरा फोटो लगाएंगे, ये लगाएंगे घर पे। आज उनको बहुत अभिमान लग रहा है ये सब चीज का। और ये लड़की ने खुद स्ट्रांग रह के वो अभिमान जीता है दोस्तों। ये भटकी नहीं इधर उधर। नहीं तो दिल्ली में बच्चे कितने भटकते हैं। ऐसी श्रुति, श्रुति मेरे पास इंटर बोल के आई थी, सेकंड या थर्ड ईयर को थी, इंटर बोल के आई थी, रूरल एरिया से आई थी, बिहार से। लेकिन उसने उसी समय डिसीजन दिया कि जब भी मैं वकील बनूंगी तो सोमानी सर के पास ही काम करूंगी। और फिर मुझे वकील बनने के बाद फोन किया तो मैंने अवॉइड किया, मैं बोला नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो प्रैक्टिस। मैंने कुछ दिन उसको लिया नहीं, लेकिन वो पीछे लगी रही। आज मेरे साथ काम करती है, मेरे लॉ फर्म के पार्टनर है, पार्टनर नहीं, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है मेरे लॉ फर्म में, मैं हूं और श्रुति है। और 2 पार्टनर है, मनोज कुमार चौधरी है और रजनीश कुमार है। बोलने का तात्पर्य है, अपने बलबूते के ऊपर एक बिहार की लड़की ए तक यहां तक पहुंची है, और एक उत्तर प्रदेश की लड़की यहां तक पहुंची है। तो सभी लड़कियां अच्छा कर सकती हैं। और इनका सपोर्ट है सर, करिए, हम तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए। हम सब मिलके भारत के हर वुमन की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। हमारे सिस्टम में क्षमता है, हमारे शब्द में ताकत है। हम किसी कमिश्नर को फोन करते तो कमिश्नर को उसकी दखल लेनी ही पड़ती है दोस्तों, लेनी ही पड़ती है। और हम एपेक्स कोर्ट में काम करते हैं, हमारे कोर्ट का पावर भी अलग है। भारत के सभी कोर्ट में वो पावर है, लेकिन वो इस्तेमाल करे तब ना। इसलिए सुमोटो एक्शन कितने हो रही है अभी, बहुत सुमोटो एक्शन हो रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए वो जो ग्रुप है ना हमारा वुमेन्स के प्रोटेक्शन का, वो ग्रुप में और वुमेन को जोड़ो आप। और दूसरा पीआईएल ग्रुप हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तो हमारा पॉस्ट का विषय चल रहा है। लेकिन आपको आपके समाज में राष्ट्रीय लेवल पे कुछ भी ऐसे गलत दिखता है तो इन्फॉर्मर्स भाई ये गलत हो रहा है, उसकी कुछ एविडेंस दीजिए, सब दीजिए, तो हम उसके ऊपर पीआईएल की योजना तैयार करेंगे। डायरेक्ट पीआईएल नहीं फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जहां गलत हो रहा है वो डिपार्टमेंट को भेजेंगे, और डिपार्टमेंट को चांस देंगे सुधारने का, फोन भी करेंगे, सब करेंगे। इतने करने के बाद भी अगर वो डिपार्टमेंट नहीं सुधरता है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा डालेंगे, और हम खुद आर्ग्यू करेंगे वो केस ऑन बिहाफ ऑफ यू पीपल। हम रखते हैं वो ताकत। हम का मतलब हम, मैं नहीं हूं। हम का मतलब है हमारी पूरी टीम है। और हम का मेन मतलब है मेरे भगवान श्री कृष्ण है। मैं जीरो हूं, जो भी कुछ करता हूं भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही करता हूं, उनका आशीर्वाद है।
तब ये कार्य होता है। इतना दिन भर थके हुए कहां से आती है एनर्जी? आया, अंदर गया, मैं वॉशरूम ने भी गया नहीं। मैं बोला 8:30 बजे का प्रॉमिस किया, अभी 8:30 बजे तो स्टार्ट करो प्रोग्राम। वॉशरूम जाएंगे बाद में। बोलने का तात्पर्य है दोस्तों, जब मुझे ऐसी, ये भगवान श्री कृष्ण नहीं दिया है दोनों को मुझे, श्रुति को भी और पूजा को भी। पूजा राय नाम है उसका। दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मिला है। बाद में और भी मिल रही है, आ रही है। आप भी डिस्टेंस से जुड़िए। आप जितना भी महिला एडवोकेट है, महिला सोशल वर्क है, जुड़िए डिस्टेंस से। आपके आपके गांव में नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब का ब्रांच स्थापित कीजिए। हम देते हैं चार्टर आपको, और कर लीजिए एक्टिविटी। बस कुछ गड़बड़ होता है, जाइए एमपी के पास, एमएलए के पास, वहां से फोन लगाइए हमको, हम बात कर रही हूँ उनसे। जाइए पुलिस स्टेशन, वहां से फोन लगाइए। जाइए प्रिंसिपल के पास, वहां पे फोन लगाइए। जहां गलत होता है लगाइए। अपने आप आपकी जो कमेटी है वहां की, नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब की रोकड़ ब्रांच एक ताकतवान बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। स्प्रेड कीजिए वह कार्य को। और जब ये फॉरवर्ड करेंगे ना, तो स्पेसिफिक मिनट डालो कि भाई ये इतने मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें से ये मिनट से ये मिनट तक आप जरूर देखिए करके। तो इसका अवेयरनेस अच्छा होगा दोस्तों। जुड़िए दोस्तों, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा। खाली पैसा कमाने के लिए हमने नहीं ली है डिग्री। और हम अच्छा काम जब करते हैं ना दोस्तों, पैसा अपने आप आता है, अपने आप आता है। तो ये निशा प्रिया भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसका रेशो है हॉस्टाइल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। और 15 पार्ट है इसका, हाई कोर्ट डिसीजन ऑन पॉश, आईसी एक्ट्स क्वाशी जुडिशियली, कॉन्फिडेंशियलिटी मैंडेटरी, एंड नेचुरल जस्टिस इसेंशियल। आगे अगले प्रेजेंटेशन में मैंने काफी केस लॉज कवर किए। मैं लेने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आए, मैंने बोला था 10 बजे तक चलेगा, लेकिन 10 बजे से ज्यादा भी चलेगा प्रोग्राम। बियर विथ में, बियर विथ में हमको काम करना है आगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकली करना है, लोगों में जाना है, अवेयरनेस करना है। तो सुनिए, बैठिए। एक दिन थोड़ा लेट सोए तो कोई फर्क नहीं। मैं भी रोज 10 साढ़े 10 बजे ही सोता हूँ, लेकिन आज मैं 10 साढ़े 10 बजे वर्कशॉप कंप्लीट करके फिर मैं बाद में कुछ खाना है बिना वो सोचूंगा। बियर विथ में किसी ने नहीं छोड़ना है, वेबिनार ये किसी ने भी नहीं छोड़ना है। और जो बाद में यूट्यूब पे देखते, तो जब तक पूरा वीडियो नहीं होता है मत बंद करो उसको, और बाद में फॉरवर्ड करो जिसको जिसको करना है, और फिर यूट्यूब बंद करो आपका। राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा, हमको करना है ये सब चीजें। हमारी 16 लोगों की टीम तो है ही हमारे साथ। ये हमारी दोनों तीन शेरी बच्चे आए, श्रुति है, पूजा राय, सब हमारे साथ ही है। लेकिन आप भी हमारे शेर बच्चे, आप भी सब हैं। भारत के हर वुमन की प्रोटेक्शन करेंगे हम अकेले नहीं, हमारे साथ सरकार भी है, सरकार के कानून है, सब कुछ है। खाली जो गेंडे के गेंडे के स्किन गेंडे के जो स्किन है ना, राइजोन, राइजोन के स्किन, गेंडे के स्किन के जो कुछ लोग हैं ना, जो चेंज नहीं होते हैं, उनको सबक सिखाना। बस एटमॉस्फियर अच्छा ही बनेगा, 100% बनेगा। रेटिंग लेंगे हम, फिर डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, हर कॉर्पोरेट का रेटिंग लीजिए, उनके एम्प्लॉयर से ले लीजिए उसका रेटिंग क्या है, कैरेक्टर का रेटिंग क्या है, मॉडल टर्पिट्यूड का रेटिंग क्या है, उसके ऊपर उसको क्या देना है। टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब कम करना है, ज्यादा करना है, ये कर सकते हैं। तो अलग अलग इंसेंटिव अलग अलग स्कीम्स योजनाएं हम गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करेंगे। दिल्ली में बैठे तो आराम से कर सकते हैं सब चीजें। आप साथ हैं हमारे, डेफिनेटली साथ है। 16 POS compliance for companies, mandatory compliance checklist, constitution of internal committee, mandatory if 10 or more employees. B, POS policy, organization must adopt a written policy. C, awareness program, regular employees training required.
D. Display notices, display POSH policy, complaint mechanism, IC details. E. Annual report. IC must submit annual report containing number of complaints, action taken, pending cases. F. Maintain records, proper documentation of complaints, proceedings, recommendations. 17. POSH compliance for law firms. Yes, law firms के लिए POSH compliance क्या है? Law firm must also comply if 10 or more employees, associates, interns. Coverage extended to partners, associates, interns, clerks, retainers. Law firms should additionally protect confidentiality rigorously, conduct internal sensitization programs, establish independent complaint mechanism. 18. POSH compliance for startups and LLPs. Even startups and LLPs are covered. Common compliance failure, no IC constitutions, no POSH training, ये failure है अगर नहीं करते हैं तो. No annual reporting. These may lead to legal liability, reputational harms, regulatory consequences. 19. Important features of POSH inquiry. Aspect and standards. Standard of proof, preponderance of probabilities. Nature, domestic inquiry. Confidentiality, mandatory. Natural justice, essential. 20. False complaint, section 14. False complaint may attract action. However, court have clarified mere inability to prove complaint does not make it false. 21. Emerging trend in POSH laws. A. Virtual workplace harassment. Online meetings, emails, and messages covered. B. ESG and corporate governance. POSH compliance now linked with ESG standards, corporate governance, HR audit. G. Judicial scrutiny increasing. Courts increasingly insisted on proper IC constitution, fair inquiries, confidentiality compliance. 22. Practical compliance strategy for organizations. Organizations should constitute regular complaint IC, internal committee. Conduct annual POSH training. एनुअल पॉश ट्रेनिंग, हर साल ट्रेनिंग होना चाहिए पॉश का ऑर्गेनाइजेशन में. मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, क्रिएट जेंडर सेंसिटिव कल्चर, एंश्योर्ड प्रॉम्प्ट इंक्वायरी प्रोसेस, एंगेज इंटरनल पॉश एक्सपर्ट्स. हम इसके ऊपर एक कमेटी तैयार कर रहे हैं हमारे लॉ फर्म की, और बाहर के भी जिस जिस लॉयर को इंटरेस्ट है वो भी हमको कांटेक्ट करके रखिए. सो जहाँ पे भी पॉश एक्ट के वर्कशॉप का, ट्रेनिंग का कुछ न्योता आता है तो देन वी विल कंडक्ट दैट डेफिनेटली. 23. Constitutional dimension of POSH. The POSH framework is rooted in equality, dignity, safe workplace rights. Judiciary trained workplace safety as a part of Article 21, right to life and dignity. खाली आर्टिकल 21 के ऊपर हमारा एक सेपरेट वेबिनार करना है हमको. श्रुति नोट डाउन करके रखना है इसको. और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत अलग अलग केस लॉज में एलोब्रेट करके दिया है. बेल मैटर में भी एलोब्रेट है. डिग्निटी के ऊपर मैंने, ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर ये है 21. इसका बहुत अलग एंगल से, अलग अलग केस लॉज देके हम इसको एलोब्रेटली एक्सप्रेस करेंगे. हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर अलग प्रोग्राम लेंगे. एक बार लिया भी है मैंने, एक प्रोग्राम होगा यूट्यूब पे, देखिए, और लेंगे विस्तार से. कंक्लूजन. दी हैज फंडामेंटली ट्रांसफर
The POSH Act has fundamentally transformed workplace governance in India, beginning with all these case laws. Indian courts have consistently emphasized that safe workplace is a constitutional right, nor merely an HR policy. POSH compliance today is not merely a legal compliance, it is an essential component of corporate ethics, professional governance, and institutional accountability. दोस्तों, बहुत अच्छा काम करेंगे हम सब साथ में मिलके और बहुत आगे बढ़ेंगे. Shruti, just I am allowed to unmute yourself and conclude this session. Thank you so much, sir, for simplifying such a complex legal framework and sharing your invaluable expertise with us. Your insight on this topic and compliance procedure were truly eye-opening. Let's move into the third and last part of today's webinar. Stay tuned for the wrap-up. Over to you, sir.